Hello, students. Today we are going to study one chapter from our book First Flight. The name of the chapter is A Letter to God. In this chapter, we are going to study about a character named Lencho, who is a farmer and whose crops are completely ruined. After that, he writes a letter to the god asking him to send him some money. At the end of the letter, we'll come to know that the letter reaches the god or not, or God helps him or not. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of reap corn dotted with flowers that always promised a good harvest. घर लेंचो का जो घर है वो पूरी वैली में अकेला है, मीन्स दूसरा कोई घर वहाँ पर नहीं है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जहाँ से वो अपने खेतों को, नदियों को देख सकता है और फसलों को देख के ऐसा लगता है कि इस बार फसल अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now, अच्छी फसल होने के लिए बारिश की ज़रूरत है और लेंचो जो है वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब उसे मालूम है कि बारिश होने वाली है। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." Lencho knows his area, his fields, his atmosphere, and he is aware that rain will come very soon. So he is just asking or telling his wife that they are going to get some water, means it rain will occur very soon. Now his wife was preparing supper. Supper means something that we eat in between the night and the day, during the evening time, that is called supper. So his wife was preparing supper for the family, and he also agreed that with the will of God will be getting rain very soon. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come on for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ना घर के जो बड़े बच्चे थे वो घर का कुछ काम कर रहे थे और छोटे जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। तभी लेंचो की वाइफ, उनकी मम्मी, उनको आवाज़ लगाती है खाना खाने के लिए। और जैसा कि अनुमान लेंचो ने किया था कि बारिश होगी, बारिश स्टार्ट हो जाती है, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहले ही बताया गया, लेंचो देख रहा था, उसको अंदाजा था कि बारिश उधर से आएगी, तो उस तरफ से माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन साइज के बादल आते हुए दिखते हैं, बारिश होती है। नाउ व्हेन इट रेन्स, यू नो दैट देयर इज अ सेंट इन द एयर दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ। नाउ as the rain started, Lencho went out just to enjoy the rain. And when he returned back from there, after enjoying himself the rain, he returned back, he says,
These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 cent pieces. लेंचो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स ऊपर से गिर रही हैं ये कॉइन्स हैं, बड़े वाले 10 सेंट के हैं और छोटे वाले 5 सेंट्स के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of reap corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy exposed themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Now, जैसा कि अभी लेंचो देख रहा था कि उसके क्रॉप्स को सावर की ज़रूरत थी, बारिश आई, बट सडनली इट चेंजेस इनटू अ हेल स्टॉर्म. बर्फ के बड़े बड़े गोले जो गिरते हैं वो गिरने लगे. अब वास्तव में जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज सिल्वर कॉइन्स. इनिशियली उसने लेंचो ने क्या कहा कि जो कॉइन्स की तरह रेन ड्रॉप्स हैं, ना एक्चुअली ये सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं. और जो बच्चे हैं वो बाहर दौड़ के जाते हैं टू कलेक्ट दैट हेल स्टोन्स. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेंचो सोचता है कि ये जो हेल स्टॉर्म्स है वो जल्दी से चला जाए, बट ऐसा होता नहीं है. करीब 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म्स गिरते हैं और वो पूरी पहाड़ी, वैली, खेतों को कवर कर देते हैं. इट लुक्स लाइक द होल एरिया इज कवर्ड विथ सॉल्ट. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than. Now, after the hailstorm has gone or it stopped, लेंचो अपने खेत में जाके बीच में खड़ा होता है और देखता है कि जो कॉर्न में फूल थे वो सब के सब गिर गए हैं. लेंचो बहुत दुखी होता है टू सी द क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और वो बीच में खड़े होकर बोलता है अपने बेटे से कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस. लोकस्टस जो आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि लोकस्टस टिड्डियों का हमला हुआ है खेतों पे. सो वो भी अगर लोकस्टस भी अगर आते तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते. मतलब कि हेलस्टॉर्म्स ने फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. देयर नो वन who can help us, we will go hungry this year. So after the crop is destroyed, रात हो गई है, लेंचो नींद नहीं आ रही है, वो सोच रहा है कि उसकी पूरी मेहनत जो है वो ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, और उनको हेल्प करने वाला, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है. इस साल उन्हें भूखा ही रहना होगा. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन लेंचो और लेंचो की फैमिली जो उस वैली में अकेले रहते हैं, सभी के दिलों में, मीन्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन टू द लेंचो, एवरीवन हैज़ अ होप. सबको उम्मीद है कि उनकी मदद कौन करेगा? गॉड उनकी हेल्प करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो अपने आप को कंसोल करते हैं कि उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि भूख से कोई भी नहीं मरता है. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अपने आप को इम्फेसाइज करता है लेंचो इस सेंटेंस से कि लोग कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता है. ऑल through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the field, but still he knew how to write.
The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Now लेंचो रात भर सोचने के बाद क्या करता है कि उसको सिर्फ एक ही होप दिखाई देता है, गॉड. लेंचो को कहा गया है कि एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि जो बहुत मेहनत करता है. तो लेंचो बहुत मेहनती है. डिस्पाइट दैट ही नो हाउ टू रीड एंड राइट. लिखना और पढ़ना भी उसको आता है. तो नेक्स्ट संडे जो दिन है वो संडे है, वो सुबह होते ही क्या करता है, एक लेटर लिखता है. और वो लेटर किसको लिखता है, गॉड को लिखता है. और खुद ही उस लेटर को लेके कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. So this is the part of the letter that he has written. God को उसने लिखा है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो हमें इस साल पूरी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा. So हमें क्या चाहिए, 100 pesos. Pesos is a जस्ट लाइक रुपीज़ एज वी कॉल्ड रुपीज़, पेजोज उसी तरह से है. तो 100 पेजोज चाहिए किस लिए, वापस से फील्ड में क्रॉप्स लगाने के लिए. और जब तक क्रॉप्स होते नहीं हैं तब तक सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे चाहिए. और वो कितने पैसे चाहिए, 100 पैसे चाहिए. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it in the मेल बॉक्स. नाउ एड्रेस क्या लिखा उसने लेटर पे, टू गॉड. वो लेटर कहाँ जाएगा, गॉड के पास जाएगा. और वो चिट्ठी लेके कहाँ गया, टाउन गया. और वहाँ पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाए और उसको मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known the address. Now one of the employee means जो एक वहाँ पे पोस्ट मैन है, वो जब मेल से चिट्ठियों को निकालता है, उसको पढ़ता है, उसको देखता है, तो वो हंसता हुआ उस चिट्ठी को लेके कहाँ जाता है, पोस्टमैन के पास. क्यों, क्योंकि उसने अपने पूरे कैरियर में ये एड्रेस टू गॉड कभी नहीं देखा है. द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड. नाउ जो हमारा पोस्टमैन है वो भी एक थोड़ा मोटा, और एमिएबल का मतलब होता है जो काफ़ी खुश रहते हैं, हंसने वाले, हंसमुख जिनको बोलते हैं, ऐसा पर्सन है. वो भी इस लेटर को देख के पहले तो हंसता है, बट तुरंत ही वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है. चिट्ठी को टेबल पे रखता है और बोलता है कि व्हाट अ फेथ, मतलब किस तरह का विश्वास है, काश मेरे में अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि ये चिट्ठी लिखने वाले पर्सन के अंदर हैं, जो डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड, जो सीधा किससे बात कर रहा है, गॉड से बात करना चाहता है. काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. फिर लेटर पोस्टमैन सोचता है कि ऐसा विश्वास जो है वो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, लेटर का आंसर लिखेगा, मतलब उसका रिप्लाई वो करेगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. बट जब लेटर को खोलता है और उसको पढ़ता है वो, तो पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि सिर्फ लेटर का रिप्लाई लिखने से इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, उसको इस गुडविल के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा. बट ही स्टक
to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So हमें मालूम है कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था. लेंचो ने 100 पेसोज डिमांड किए थे गॉड से. सो सिर्फ गुडविल होना, अच्छी नीयत होना से काम नहीं चलेगा, पैसे चाहिए थे जो लेंचो को देने पड़ेंगे. गॉड अगर लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें उसको 100 पेसोज देने पड़ेंगे. सो हमारा पोस्टमैन जिसने एक रेजोल्यूशन लिया है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा, वो स्टक करता है अपने रेजोल्यूशन के साथ. मतलब ये नहीं कि पता चला पैसे देने हैं तो वो छोड़ दे, वो स्टक करता है. मतलब अपना जो डिसीजन है वो उसको पूरा करेगा. इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांगता है टू डोनेट एज अ चैरिटी टू लेंचो. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. इतना लोगों से मांगने के बाद भी, सैलरी का अपना कुछ पार्ट देने के बाद भी, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट 100 पेसोस. तो उसने जो कलेक्ट किए वो मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा था जो उसने इकट्ठा किया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. फिर उसने उन पैसों को एक एनवलप में रखा और रख के उस पर सिग्नेचर गॉड का उसने कर दिया. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे जब चिट्ठी का रिप्लाई आना था तो लेंचो थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंचता है. मीन्स इन ईगरनेस ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. वहाँ वो जाता है. नाउ जो पोस्टमैन है वो खुद वो लेटर जो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एनवलप में रखे हैं वो लाके उसको हैंड ओवर करता है. और ये जो सारा अरेंजमेंट जिसने किया पोस्टमैन, वो अपने ऑफिस से ये पूरा प्रोसेस, ये सीन देख रहा होता है. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो को जब वो एनवलप मिलता है गॉड का, he was not surprised because he has such a deep faith in God कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे. So he was not surprised at all. लेकिन जब वो एनवलप खोलता है, पैसों को काउंट करता है, he found कि वो पूरे नहीं है. और इसलिए उसको क्या होता है, गुस्सा आता है कि ऐसी गलती भगवान तो नहीं कर सकते. और भगवान से जो उसने रिक्वेस्ट किया था उस रिक्वेस्ट को भी भगवान कभी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp. Now, लेंचो गुस्से में ही क्या करता है कि वो विंडो काउंटर पे जाता है, वहाँ से पेपर इंक की डिमांड करता है. राइटिंग टेबल पे जाके वो फिर से चिट्ठी लिखना चालू करता है. विथ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकलिंग यू नो, गुस्से में वो भौवें चढ़ती हैं. सो गुस्से में है वो. और जैसे ही वो ख़त्म होता है चिट्ठी लिखना उसका, वो खिड़की पे जाके एक स्टैम्प खरीदता है. विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स इट. लिक्ड मतलब जीभ से उस पर यू नो पुट सलाइवा, और वो उसको स्टैम्प पे स्टैम्प करता है. द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. उस स्टैम्प को एनवलप पे रख के और मुट्ठी से, फिस्ट मीन्स विद द फिस्ट ही स्टैम्प ऑन इट, उस पर जोर से मारता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mailbox.
बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो। जैसे ही लेंचो उस चिट्ठी को मेल करके चला जाता है, पोस्टमैन मास्टर जाके उस चिट्ठी को लाता है, उसको ओपन करता है एंड ही रीड्स इट, उसको पढ़ता है। तो उसमें लिखा हुआ क्या है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे, कितने मांगे थे, 100 पेसोस, उसमें से आई हैव गॉट ओनली 70 पेसोस, सिर्फ 70 पेसोस ही उसको मिले हैं। सो ये पैसे जो बाकी के पैसे हैं वो भी मुझे आप सेंड करो, और वो सेंड कैसे करना है, डायरेक्टली टू मी, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे को सेंड करना, क्योंकि मेरे को ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं कैसे लग रहे हैं, अ बंच ऑफ क्रूक, बदमाश लग रहे हैं, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ था। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू माइट हैव enjoyed it. Just complete the question answer of this chapter. If any doubt, we'll contact in the Zoom meeting.